13 तो टोटल लोग हैं, डेवलपर्स इंक्लूडिंग मी आर जस्ट 5. Within one and a half month, we were able to create the first level of product, first MVP, and ship it. Even though like you have a brand name of IIT, At that point of time, we did not have any team member. So hello everyone, today we have founders of TopMate, a Bangalore startup जिनको नहीं पता TopMate के बारे में. It is creating the biggest hype in the tech world on LinkedIn. किसी को अपना time sell करना हो and valuable information with years of experience से help करना हो लोगों को in the community of LinkedIn people or anywhere, they are able to do it directly thanks to TopMate. किसी को webinar host करना हो, किसी को one-on-one sessions देने हो, all is possible seamlessly without assistant thanks to them. So let's meet them. So hello everyone, today we have founders of TopMate, a Bangalore startup. जिनको इस startup के बारे में नहीं पता, they are ruling in the tech industry. In fact, my managers in the US, the CEOs of big tech companies, फैन कंपनीज, हर कंपनी में एक ना एक आपको टीम मिल जाएगी वेयर दे आर integrated with TopMate and वो help कर रहे हैं the whole LinkedIn community in getting into tech industry one-on-one counseling. कोई ऐसी टीम बची नहीं है जहां पे specially LinkedIn में TopMate integrated ना हो, and I was amazed by looking at the startup, and I am also on TopMate thanks to them. And now let's get to know about the journey of this Bangalore startup. So hi Dinesh and Ankit, can you please introduce yourself? Thank you. Thanks a lot, Harnu, for having us. It's been a pleasure to share our journey. And this is something that, and it's a great thing that you mentioned that a lot of people are talking about us. It's been a very pleasant surprise for us as well. So to introduce myself, I am Ankit. I am the co-founder and CEO of TopMate.io. I handle the business and the growth side of it and have worked before in different industries before this, be it consulting, be it program management, project management, product. And started this with Dinesh. Dinesh has been my friend since college. We have known each other since 13 years now. Wow. So which college you went to? We both went to IIT Bombay. We both passed out in 2012. So Dinesh is 1 year senior to me. He joined in 2007 as a dual degree candidate, and I was at the BTech. Very nice. And Dinesh? Yeah, so thanks for inviting us to this podcast. So yes, I graduated in 2012, and post that I've been working with lots of early age startups. तो वहाँ पे मतलब पूरा का पूरा tech scale किया from the people जब 2-3 ही लोग थे to the team of 30 to 40, and that has been my forte, and we started TopMate around in August 2020, and it's been 2 years since then, and I am the co-founder and CTO of TopMate. I look after the entire tech and product piece. Very nice. So to give you all background, मैंने कोई paid promotion नहीं देखी, मैंने कहीं पे advertisement नहीं देखी. I never saw any advertisement of TopMate, but it organically reached to our team. It organically reached to me. I asked fellow creators, were you part of a paid promotion? And they were actually promoting it because they like the product. तो आपने product को कैसे expand किया? How did you market it? And how it organically reached every single team in the US, every single big tech company I can think of. So actually, this is jo आपने बोला exactly the same way. So from the very first day, the philosophy is, and between both of us, be it our team members, be it the people who are using TopMate, be with people who we work with outside TopMate also, we have this philosophy that we'll share the success with everyone, no matter whatever way we can do it. Right. So right from the day one, we had this philosophy कि जो हमारे experts हैं, people who are helping us to reach to this scale, people who are using TopMate, we will make them champion. We will give them a delightful experience. But at the same time, we will keep making them champion in whatever way we can. And that's the reason why we create these kind of collaterals. Whenever they achieve a milestone, whenever they reach some kind of a benchmark, we give them very beautiful posters, collaterals. So what happens in this process is that, say, suppose you start using TopMate. Now others within your network will get exposed to it automatically. And the tool is so simple to use, and the tool is something, or the product is so easy to customize, easy to use, that it is designed for everyone, and especially for people who are like value professionals. So we like to call them as value professionals, people who have some kind of a value to give to others, and they are willing to do that. So the whole concept behind making our users champion help us to kind of reach out to more and more people who are willing to use this. And then obviously from the product side, we made a lot of optimization changes in the product in terms of integrating with LinkedIn through their APIs, which was a hell lot of a task. Dinesh can
kind of double down on it. So it was a very, very big task for us to kind of crack that kind of a functionality कि लोग उसको use करें. And similarly, the way we kind of create things for us. तो जिस तरह के हम tools use करते हैं, be it an AI writer, be it like Create-O-Mat, different kind of products that help you to create different kind of personas, posters. So वो सब से we were able to kind of reach out to more and more people through our effort and majorly through the product that we have been able to create. Very nice. Yeah, so continuing that. So I mean, if you look, so and if you'll ask other developers, LinkedIn, I would say, is one of the worst APIs to integrate with. I mean, so sorry for that, but yeah, their documentation is not that great, and so I think, and that's why you will see lots of products who have Instagram share, and they would have Twitter share, but very few products would have inbuilt LinkedIn share. And that's what we were able to crack. And then we were able to, once if someone enters their LinkedIn profile, तो हम लोग उसका profile पूरी scrape करके, and we were able to provide a very beautiful experience कि बस in less than 2 minutes आप बस LinkedIn से sign in करो, and we will create a profile based on your LinkedIn. और LinkedIn से scrape करके उससे profile बना के, अगर आप within 2 minutes अगर आप चुटकी बजा के, if you are able to sort of create your own profile and you are able to earn money just within few minutes, that's the kind of power which, because these are people who haven't, I mean, people like me and others, I mean, we have never earned anything out of our mentorship, right? But when we get that aha moment कि यार मैंने रजिस्टर किया और मैंने 2 मिनट में बना के लिंक्डइन पे शेयर कर दिया और 5 मिनट के अंदर मेरी 500 रुपए की बुकिंग आ गई, that feeling ना, वो होता है aha moment. And that's why people like us, we will tell up to 10 different friends कि यार TopMate use करो, and it is wonderful. Wow, yeah, that is mind blowing. And talking about the product, what was the aha moment in your startup कि आपको लगा कि ये startup create करना चाहिए? And those who don't know, TopMate is not just a brand. ये एक ऐसा leverage है किसी भी creator या non creator को जो LinkedIn पे जिसकी एक या दो connections भी हैं, they can just get started on TopMate and अपना टाइम सेल कर सकते हैं एंड सेल देयर वैल्यूएबल टाइम एंड इंफॉर्मेशन जो उन्होंने एक्सपीरियंस सालों का गेन किया है. बिकॉज होता क्या है कि लेट्स से दैट आई वांट टू जॉइन अ टीम एट लेट्स से फेसबुक एंड मुझे उस टीम के बारे में जानना है, उसके मैनेजर के बारे में जानना है, एंड इफ आई सी अ समवन कि ये बंदा इस टीम में काम करता है, मुझे उनका फीडबैक लेना. मेनी पीपल डोंट रिप्लाई ऑन लिंक्डइन, बट आई कैन गो टू देयर प्रोफाइल, क्लिक ऑन TopMate, उनके लिए $50 $100 में उनका टाइम खरीद करके उनका पूरा एक्सपीरियंस मैं सीख सकता हूं, and then decide कि should I join that team for Facebook, should I actually get myself enrolled into that team and join that team and think about applying at Facebook for a tech position. ये सारे doubts, कोई भी चीज हो, चाहे study abroad हो, चाहे अपना टाइम आपको फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी फील्ड में हो, they can do it. And I was amazed कि ये हो भी सकता है, क्योंकि मुझे लगता था कि क्यों कोई किसी का टाइम खरीदेगा. एंड हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल? कब आपको लगा कि ऐसा करना भी चाहिए, कि ये आइडिया काम भी करेगा? तो we were actually exploring a lot of different ideas. तो मैंने और दिनेश ने, we started our entrepreneurship journey in August 2020. So we were exploring a lot of different ideas in different domains. So actually we explored almost every industry. So be it travel, be it fashion, be it sales, be it AI, gaming, everything. Right, so social media, everything. And during that time what happened was कि हम लोगों को बहुत सारे लोगों से बात करनी थी, सक्सेसफुल जो लोग हैं अपने इंडिया के, someone who has created big companies, some big executives from different companies, and we tried to reach out to them on LinkedIn. तो हुआ ये कि because of the network we were able to get hold of their time, but it took us say 1.5 2 months to get a meeting with them. In some cases, there were 2-3 touch points that were required. So, for example, I will reach out to Dinesh. Dinesh will introduce me to Harnoor. Harnoor will then introduce me to someone else. So, there was a lot of touch points. There were a lot of hand holding that was required. Similarly, we used to read a lot of blogs around knowledge site, right? So, कैसे startup बनाते हैं, how to take it from 0 to 1, product market fit क्या होता है, और ये सब चीजें. वीडियोस देखते थे, ब्लॉग्स पढ़ते थे, और कॉलेज के टाइम से ये ना एक आदत रही है कि कमेंट्स पढ़ने की हैबिट थी. मतलब वी यूज टू रीड कमेंट्स, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा सोशल मीडिया में ज्यादा मसाला कमेंट्स में होता है कंटेंट से ज्यादा. तो काफी लोग ऐसे बैंटर चलता रहता है, कुछ भी होता रहता है. तो ये टाइप के जब वीडियोस या फिर ब्लॉग्स में जब कमेंट्स पढ़े, वी रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग टू कनेक्ट विद द पर्सन.
जिसने भी वो ब्लॉग लिखा है या फिर उसने वीडियो अपलोड किया है, एंड पीपल कीप सेंडिंग देम मैसेजेस कि कैन यू गिव मी 30 minutes, आई नीड टू गेट some kind of an guidance on this, some kind of an advice on this. So we thought that this is a good problem to solve. But when we started researching about it, when we started talking to people in reality, we realized that ki real problem is with folks like you. So someone who has a lot of knowledge, someone who is running a YouTube channel, someone who is active on say different platforms, someone who is a big executive in a big tech company. तो उनके पास बहुत रिक्वेस्ट आती है, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट एबल टू हैंडल देम, बिकॉज उनके पास या तो सेक्रेटरी होनी चाहिए या टीम होनी चाहिए, अदरवाइज इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल कि सबको मैसेज करो, सबसे बात करो, और पैसे मांगना तो मतलब इट्स लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल ओवर अ मैसेज. So that's how we realized कि यार let's build it like a tool for the professionals rather than a place where people can search for someone. It is more like that gives you power कि आपको कैसे अपना टाइम शेयर करना है, कैसे अपनी नॉलेज शेयर करनी है, और आप कैसे मोनेटाइज करना चाहते हैं. So that's how we came up with the idea. And it is mind blowing कि कुछ CEOs $1,000 में अपना टाइम सेल कर रहे हैं, and it is possible without an assistant. I was blown away with that. तो यही पूरी फिलॉसफी थी कि एक तो क्या होता है, दो तीन चीजें थी जो हमको रियलाइज हुई कि फ्री एडवाइस की वैल्यू नहीं होती है. नो मैटर यू गिव समवन द बेस्ट एडवाइस, द फ्री एडवाइस हैज यूजुअली नो वैल्यू. सेकेंड थिंग इज कि दोनों लोगों का इसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है. अगर इन्वेस्टमेंट है तो पीपल ऑल्सो कम प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चंस. तो एक ऐसे बताता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था तो वी यूज टू थिंक कि यार हमको करीबन 1.5-2 साल या 1.5-2 years तो इसमें फ्री बुकिंग्स ही आती रहेंगी, मतलब कि हमको ही लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, हमको ही लोगों को बोलना पड़ेगा कि यार आप बस हमसे 200 रुपए ले लो बट आप फ्री रख दो, मतलब इनिशियली. बट देन ग्रेजुअली एंड टू आवर सरप्राइज लाइक यू आर मेंशनिंग कि हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि पीपल स्टार्टेड चार्जिंग मनी फॉर देमसेल्व्स. टू स्टार्ट ऑफ विद कि कुछ लोगों ने 50 रुपीज रखा, कुछ ने 500 रखा, कुछ ने 1000 रखा, और उनकी बुकिंग्स आने लगी. तो दैट वाज द मोमेंट व्हेन वी रियलाइज कि हाँ यार ये वर्क कर सकता है. एंड दैट इज समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर 2021 व्हेन वी स्टार्टेड गेटिंग दीस पेड बुकिंग्स फ्रॉम आवर यूजर्स ऑर्गेनिकली, मतलब हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा था. तो वहां से हमको रियलाइज हुआ कि यस, this can become big. This is something that can be useful for a lot of people in world. And now I think we started with even अगर किसी की 500 रुपए की बुकिंग आती थी ना, एंड हम लोग मतलब नाचने लग जाते थे उस टाइम पे, अक्टूबर आई थिंक 2021 में, क्योंकि हमारे जो भी बुकिंग आती थी तो हमें पता पड़ता कि हाँ यार बुकिंग आ गया स्लैक चैनल पे. तो एंड उसके बाद अभी अभी टाइम है कि पीपल आर अर्निंग क्लोज टू $12,000-13,000 just in a single webinar of 1 hour. Wow. And we have come a long way from there. अब हमारे लिए मतलब 500 की बुकिंग इज मतलब अब वो कुछ है नहीं. एंड so that's what की, and that journey was just fantastic. Mind blowing. And can you share, is it bootstrap right now कि आपने फंडिंग उठाई हुई है? Because many startups in India ने अपना ब्रांड फंडिंग उठा के दिया हुआ है कि मतलब वी आर 100, 200, $300 million कंपनी इन few days, few months, few years. और उससे अच्छा भी लगता है, मतलब not naming any company, कुछ लोगों ने $1 billion की कंपनी नाम दिया हुआ है, that becomes a brand कि ये $1 billion कंपनी है, इसमें आते हैं. पर आपने बूटस्ट्रैप चूज किया कि आपने फंडिंग उठाई? हमने एक फंड उठाया था, एक फंड रेज किया था हमने लास्ट ईयर मार्च में, स्मॉल सीड राउंड फ्रॉम इंडिया कोशेंट एंड टाइटन कैपिटल. तो वो फंड रेज किया था, बट प्रिडोमिनेंटली फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वी डोंट बर्न अ लॉट ऑफ मनी. एंड फॉर्चुनेट मतलब हमारा इतना वैल्यूएशन तो नहीं है अभी कि हम ऐसे बोस्ट कर पाए अपनी ब्रांड के बारे में, बट द वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस फॉर अस कि हम डिलाइट क्रिएट करते हैं बस. क्योंकि जैसे लोग आते हैं हमारे पास, अचानक से मैसेज करते हैं कि यार मैंने आज टॉपमेट यूज किया एंड द एक्सपीरियंस इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई जस्ट लव इट. और वो बस ये बोल के चले जाते हैं, दे डोंट डिमांड एनीथिंग, दे डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, बस वो अप्रिशिएट करने के लिए आते हैं लिंक्डइन पे, दे सेंड अ मैसेज एंड देन गो अवे. आई कीप ऑल द स्क्रीनशॉट्स, है ना, तो मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स भी पड़े हुए हैं. तो जैसे कोई मैसेज करता है, मैं पहला काम ये करता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेता हूँ थैंक यू बोलने से पहले, ठीक है, वो डिलीट ना कर दे इतनी देर में. तो वैसा है. बट यस, सी फंड से क्या होता है कि यू गेट सम काइंड ऑफ अ लीवे टू रन सम एक्सपेरिमेंट्स, टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, राइट. सो ऑब्वियसली वैल्यूएशन एंड ऑल, इट्स अ वेरी मार्केट ड्रिवन थिंग्स, है ना. हमेशा जरूरी नहीं है कि यू विल फाइंड एवरी कंपनी बिकमिंग $100 million और समवन बिकमिंग से $1 billion कंपनी. बट एट द सेम टाइम
money gives you a lot of comfort in terms of if you're on the right track, if you have the right idea, if you are on the right track, then money gives you a lot of leverage to run experiments, to try out new things, and उससे ही आपका product eventually create होता है. तो हमारे लिए वो fortunate रहा कि we were able to raise a small round, and through that we were able to do all of these things that we are doing today. So इसमें and one of the thing which has helped us a lot कि whoever, so we are a team of total 13 people, and most of the people, I would say 90% of people, they are either our friends, matlab whom we have worked for last 10 years or so, or they are referred by someone whom we know really well. तो सारे लोग सब sort of दोस्त ही हैं, and तो इसलिए मतलब काफी, मतलब the productivity level is so high कि I would say, and I tell people कि यार guess करो कि कितनी जनता होगी. They say कि at least 40 तो सिर्फ डेवलपर्स ही होंगे, एंड बाकी बिजनेस टीम अलग होगी. एंड when I tell them the actual team size, they just get shocked कि सिर्फ 13 लोगों की टीम ने इतना बड़ा प्रोडक्ट, और मतलब it is expanded to lots of countries. So हाँ, that's, वो कहते हैं ना कि इंडिया इज द सॉफ्टवेयर हब ऑफ द वर्ल्ड, Yeah. विच इज ट्रू. आपने 13 डेवलपर्स ऐसे हायर किए विच आर लाइक एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. आपको बताता हूँ मैंने कितनी टीम्स में काम किया विच हैव डेवलपर टीम्स ऑफ 20, 30 and which are like small teams of a big tech company, but you creating a startup with just 13 developers. And नहीं, the 13 डेवलपर्स नहीं, 13 तो टोटल लोग हैं. डेवलपर्स इंक्लूडिंग मी आर just 5. really? Yeah. Yes, Oh, I thought this is the 30 team. developers. Mind blowing. Like I have worked in teams of 20 developers and still product like that take months and years of time, but you were able to ship it in few months, right? So कितना time लगा जब आपने idea सोचा and कितने time में आप deliver कर पाए, and how Bangalore helped you in picturing it and delivering it? हाँ, तो I think first iteration, we started exploring this idea after the second wave of COVID. So somewhere around June 2021. So that was the first time when we started speaking about this idea. Actually, तो हमने शायद within one and a half month we were able to create the first level of product, first MVP, and ship it. तो obviously वो basic था in terms of what you see today. But हाँ, मतलब one and a half month लगा था हमको, and even at that point of time we did not have any team member. So Dinesh was the only person, and in that moment Bangalore kind of helped us because and the network that we had, we were able to kind of work with people from outside the company. तो जिन लोगों को कुछ नया करना था, कुछ एक्सप्लोर करना था, वी वर एबल टू वर्क विद देम. कुछ हमने फ्रीलांसर्स लिए, कुछ लोग थे जो हमारे पहले फ्रेंड्स थे, उनके साथ हमने काम किया, एंड वी वर एबल टू यूटिलाइज देम टू काइंड ऑफ क्रिएट इट. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो आई थिंक we were just about say 4-5 people in total. हम स्टैंड अप रखते थे, 4-5 लोग थे बस, मतलब, और उन सब ने ही पूरा एमवीपी बना दिया, और मैक्सिमम लोग तो उसमें फुल टाइम भी नहीं थे, मतलब दे यूज्ड टू वर्क फॉर अबाउट 2.5 hours a day. And the full time तो me, you, and अपना designer Pape. Pape. So we three were there, and Bangalore. See, Bangalore से of course, because lots of, so we both were inclined कि यार पुणे में खोलते हैं, because Pune is a great city, but then फिर एक हुआ कि नहीं यार, पूरी दुनिया मतलब मचा ही रही है बैंगलोर में, एंड ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स आर देयर इन बैंगलोर, एंड मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स they were opening their own startups. तो वहां पे they had there's a co-working space in HSR layout, तो वहां पे they were working from there. Then I thought कि why not just go and work with them, and we'll share our resources, we'll share our developers, we'll share everything. And तो वहां पे I think काफी ज्यादा मदद मिल गई थी, मतलब the other startup, they were able to help us in raising funds, they were मतलब reviewing everything, तो काफी ज्यादा हेल्प मिली थी. यही होता है ना कि यू से बैंगलोर में एक इकोसिस्टम है, एंड दैट ऑलवेज हेल्प्स यू राइट फ्रॉम डे वन. कुछ भी बाउंस ऑफ करना हो आइडिया, कुछ वर्क एकदम ऐसा रैंडम आइडिया भी हो, सो यू हैव पीपल यू कैन बाउंस ऑफ योर आइडिया विद, यू हैव पीपल यू कैन टॉक टू विद, और उन सबसे बहुत मोटिवेशन आता है. सो आई थिंक वो पर्सोना और वो पूरा आई थिंक और ही ऐसा बना हुआ है बैंगलोर का कि एवरीबॉडी वांट्स टू डू समथिंग. तो यहाँ जब आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो सबके अंदर वो एक फीलिंग रहती है कि यार मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है, एंड दैट इज वेरी इन्फेक्शियस, एंड दैट ऑलवेज हेल्प्स.
तो कोवर्किंग का भी आइडिया ऐसे ही था जो दिनेश बोल रहे हैं कि वी यूज टू वर्क विद देम एंड उनको देख के हम मोटिवेट हो रहे हैं, हमको देख के वो मोटिवेट हो रहे हैं, और वाइस वर्सा ऐसे ही चलता रहता है। हाँ। वो कहते हैं ना कि जब आपका गोल हो टू एड वैल्यू टू अदर्स, यू हैव अ प्रोडक्ट इन विच the biggest value is your customers. 90-95% is going to them. The amount of money they are able to make is towards your customers, towards how much they are able to monetize their value, their time. तो वो प्रोडक्ट जब लोगों के बेस पे चलता है, उस पे बहुत लोग कनेक्ट कर जाते हैं, एंड इट्स इजियर फॉर यू टू फाइंड गुड डेवलपर्स देन एज वेल, बिकॉज ये जो आइडिया है, even when you told me about it, it connected with me and resonated with me immediately. I believe it happened the same for your developers as well, and the community and the people you are hiring in this team of 13, right? Yes, Absolutely. Wonderful. And can you please share the biggest challenge of building a startup? You said कि यार 1.5 महीने में you were able to ship an MVP. It sounds really easy, but it's not. आपने बताया LinkedIn के साथ integration करना is really, really challenging. But what is the biggest challenge, even though like you have a brand name of IIT, क्या आपको लगता है कि फंडिंग उठाना उससे इजी है? What were the challenges irrespective of which college you come from? स्टार्टअप में होते ही होते हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था, तो इससे पहले भी हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था बिफोर टॉपमेट, एंड वन थिंग वी रियलाइज कि वी आर नॉट दैट ग्रेट एट डिजाइन, एट यूआई यूएक्स। तो फिर क्योंकि एंड वी एक्सेप्टेड कि यार ठीक है, वी आर गुड एट बिजनेस, वी आर गुड एट कोडिंग, वी आर गुड एट प्रोडक्ट, बट एक डिजाइन का है कि वो नहीं। तो दैट्स व्हेन वी थॉट कि यार, and at that point we were really bootstrapped, और हमें पता है कि यार if we have to build a global product, तो फिर हमें तो मतलब बहुत ही अच्छी डिजाइन चाहिए रहेगी प्रोडक्ट की, राइट? एंड वी, तो that's when we thought कि यार even if we have to pay someone from our pocket, this one person we have to hire a person who is awesome at design. So that's when we said कि यार even if we don't have funding, हम लोग freelance नहीं, हम लोग full time ही hire करेंगे। And that's when we hired Pape, उसका नाम है पवनप्रीत, and I think that was one of the game changing moment कि man, Ankit can add to it. हाँ, मतलब डिजाइन वाला तो क्योंकि हमने पहले वाले प्रोडक्ट में किसी फ्रीलांसर के साथ काम किया था, एंड वी वर जस्ट नॉट एबल टू काइंड ऑफ मैनेज थिंग्स, एंड ऑब्वियसली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये होता है कि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थॉट, एंड दीज डेज इट्स मोर अबाउट हाउ यू यूज द प्रोडक्ट, what kind of experience you get, what kind of feelings you kind of see when you kind of use a product. तो वो एक मेजर चैलेंज भी था, और हमारे लिए एक लर्निंग भी थी पिछले स्टार्टअप से, मतलब पिछले प्रोडक्ट लॉन्च से। तो दैट इज समथिंग दैट वी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस। इन टर्म्स ऑफ other challenges, I think getting the thing right is a very big challenge that a lot of people would be facing and will continue to face. तो जैसे कई बार क्या होता है कि you get so emotionally attached to the thing that you are working on, or to the thing that you are trying to build, that you start to look over the negative points of it. तो एक हमारे लिए ये सबसे important piece था कि we were very critical and open minded when people used to blame us कि यार ये चीज चलेगी नहीं, या ये चीज खराब रहेगी, क्योंकि what we realized कि कन्विक्शन और एक इमोशनल अटैचमेंट में एक थिन लाइन होती है। तो यू समटाइम्स हैव अ वेरी गुड कन्विक्शन ऑन योरसेल्फ कि यार आई विल बी एबल टू क्रैक इट, और कई बार क्या होता है कि वो इतना ज्यादा आप उसमें बह जाते हो, या फिर यू कीप थिंकिंग अबाउट इट इन सच अ वे दैट यू काइंड ऑफ स्टार्ट लूजिंग द ट्रैक ऑफ इट। तो वो एक मेजर चैलेंज था कि काफी लोग बोलते थे कि आइडिया कैसे वर्क करेगा, क्या चीज चलेगी। Then talking to the users, potential users, convincing them, the first few set of users, right? So 10, 15, 20 people who are going to use this. So getting to know them, getting to know their problem statement, getting to know what kind of things that they are specifically looking out for, so that we can assist them. So these were for few of the challenges that we faced. एक चीज आपने बोली थी कि फंडिंग रिलेटेड, वेदर बीइंग फ्रॉम आईआईटी हेल्प्स यू इन गेटिंग द फंडिंग। आई थिंक किसी ना किसी वे में it is true and not true both. See, what happens is that, and I would be very candid about it, कि yes, we are able to get meetings quite easily compared to someone who comes from a say tier 2 or tier 3 college, because network है, लोग हैं जिन्होंने अलग अलग स्टार्टअप्स में काम कर रखा है, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी वेंचर फर्म में हैं। तो to get to know them, to basically have the first meeting becomes easier, comparatively easier, because एक benchmarking रहती है लोगों के माइंड में कि चलो इनसे बात तो कर ही लेता हूँ, बट आई थिंक आफ्टर दैट इट्स ऑल द सेम।
So after that is absolutely the same. It's not ki just because you are from IIT they will give the funds and your business idea is like here and there. You have no traction, you have no understanding of the market or the thing that you are building. तो उसमें definitely funding नहीं होगी. हमारे बहुत सारे friends हैं और हमारे साथ खुद का experience था ना, पिछला हमने product launch किया ही था. We were not able to raise funds. And at that point of time also we were able to get meetings, but हमको funding नहीं मिली. तो I think वो first barrier के लिए, foot in the door के लिए it works, but after that it's all your research, it's all your conviction, and it's all the way you are looking at that problem statement. And value creation जो आप बहुत बड़ी कर रहे Well, हैं. And the absolutely. air is कि होता ये है कि and it's true कि you talk to anyone. We used to talk to lots of people और सब लोग हमें, अरे तुम तो IIT से हो, अरे फंडिंग तो तुम बस जाओगे एंड यू मिल जाएगी. they are ready with their checks कि बस साइन करना बाकी है. एंड हम लोग स्टार्टिंग में बहुत अरे भाई मिल ही जाएगी एंड बट नहीं होता, बिकॉज देन वी सी आवर फ्रेंड्स की दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग अ लॉट, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मतलब लाखों आईटीएंस निकलते हैं यार, बट नहीं होता. इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आफ्टर दैट. Absolutely agree. And काफी स्टार्टअप्स ना अपने सेकेंड थर्ड स्टार्टअप में सक्सेसफुल होते हैं. कहा जाता है ना फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस. मैंने कोई ऐसा स्टार्टअप देखा नहीं जो कहता है कि मेरा पहला ही स्टार्टअप हो और वो बहुत नेक्स्ट लेवल इमीडिएटली हिट हो गया. तो आप अपने फेलियर्स शेयर कर सकते हैं क्या? वो इस स्टार्टअप में हो सकते हैं, पिछले स्टार्टअप्स में हो सकते हैं, एंड हाउ यू डेल्ट विद इट. फेलियर्स तो बहुत है, मतलब तो जो मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था प्रीग्रैब इन 2015 एंड टुडे आई कैन वेरी इजीली से कि आई वाज लाइक वेरी इमेच्योर व्हेन आई स्टार्टेड इट. तो मुझे कुछ भी नहीं पता था. सॉरी, क्या वो नहीं, वो आफ्टर सम टाइम ऑफ वर्किंग था. सो आई वाज वर्किंग इन मिडिल ईस्ट एंड यूरोप एंड उसके बाद इंडिया आके मैंने वो स्टार्ट किया था. बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं ऑयल इंडस्ट्री में काम करता था तो आई वाज वेरी अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई नेवर न्यू कि क्या होता है, मतलब ऐप क्या होती है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, मार्केट प्लेस क्या होता है, ये सब भी नहीं पता था. तो आई थिंक फेलियर्स तो बहुत है, मतलब बेडी ऐप में जैसे बताया कि हमने डिजाइनर नहीं लिया था, वी यूज टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज. उसमें हमको साइकोलॉजी समझ नहीं आ रही थी यूजर्स की कि वो चाहते क्या है. मतलब वी वर बिल्डिंग इट फॉर द रैपर्स. तो वो साइकोलॉजी समझना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर देम, कि उनसे बात कैसे करें, कैसे समझें. तो यही सब जो हमारे चैलेंजेस थे, वी ट्राई टू काइंड ऑफ ओवरकम देम व्हाइल क्रिएटिंग टॉपमेट. तो हमने एग्जैक्टली यही किया कि वी यूज टू टॉक टू अ लॉट ऑफ यूजर्स इन डिफरेंट वेज कि हम ज्यादा से ज्यादा इंसाइट्स ले पाए उनसे बिफोर लॉन्चिंग इट, बिफोर स्टार्ट टू बिल्ड समथिंग. First get a lot of idea, a very basic, very detailed, very polished idea about what we should build, what we should strive for, right? So ये दो तीन चीजें थी. Then be planned, right? So कई बार क्या होता है कि when you get into these kind of scenarios, you have a feeling कि यार चलो बस बनाना चालू कर देते हैं या फिर चलो एग्जीक्यूट कर देते हैं and everything will be done, right? So those were some of the things that we learned कि यार हमेशा ऐसे वर्क नहीं करता है, ब्रूट फोर्स हमेशा वर्क नहीं करती है. इफ यू आर प्लान्ड, इफ यू आर से गिविंग अ थॉट टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, इट विल ऑलवेज हेल्प यू. तो जैसे अभी हमारी फिलॉसफी रहती है कि वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द ऑड्स ऑफ सक्सेस, राइट? सो कुछ भी करेंगे उसमें एक फेलियर के चांसेस रहते हैं, बट इफ वी आर स्मार्ट इनफ, if we have so much of understanding of the market, of the data that we are gathering from the users, वो कैसे behave करते हैं, so it should be in our best interest कि हम अपने odds of success को increase करें. So these are some of the things that we kind of took from that situation, जो भी हमारे past failures हैं, be it working also, so not just startup actually. कई बार क्या होता है कि आप जब जॉब कर रहे होते हो वहां पे भी आप बहुत गलतियां करते हो. So you just keep learning, and I think that's the best way. You don't make the same mistake again, but be open to keep making mistakes. तो वही हमारा philosophy रहती है, and that's how we keep learning every day. Yeah, and one thing I would like to highlight, I think जो जैसे अंकित ने बोला कि जो पहले जॉब करी हैं एंड इवन ड्यूरिंग आवर प्रीवियस स्टार्टअप, तो उसमें मतलब ऐसा होता है कि यार ये मन में आया एंड आई जस्ट यूज्ड टू कोड किया, ये हमने कोड कर दिया और ये इसको शिप कर दिया कि यार मे बी इससे चल जाएगा फीचर डेवलप करने से. एंड वी यूज्ड टू कीप शिपिंग फीचर्स एट एस्ट्रोनॉमिकल पेस और हमारा इतना ब्लोटेड प्रोडक्ट बन गया था. एंड दैट वाज अ लर्निंग कि यार सिर्फ फीचर और ये एक गलती आई थिंक इंडिया स्टार्टअप्स करते हैं कि बहुत ही मैसिव एकदम ब्लोटेड प्रोडक्ट बना देते हैं कि उसमें
10 तरीके की चीजें होती हैं, एंड that's a mistake, that's a huge mistake, and that's when we realize कि नहीं यार, जब टॉपमेट बनाएंगे then we will focus on even scraping out some parts of the product, कि अगर कुछ हमें पता है कि यार we build an MVP and if it not gonna work out then we gonna scrape it off, नहीं चल रहा ठीक है। तो ये चीजें, इससे बहुत ही लीन प्रोडक्ट बनता है, एंड दैट्स हाउ आई थिंक, एंड इफ यू सी प्रोडक्ट विच आर बिल्ट इन द यूएस, यू विल सी कि यार इसमें है ही क्या, ये तो मैं मतलब 2 हफ्ते में बना दूंगा, एंड दोज आर दी प्रोडक्ट्स विच आर फैंटास्टिक। वही प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनको आपको लगता है कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, बट बैकएंड में ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटी विच आर बीइंग बिल्ट। वंडरफुली सेड कि हम आजकल ना बहुत ज्यादा मानते हैं कि अगर हम आइडिया शेयर कर देंगे दूसरों के साथ तो कोई कॉपी करके 2 हफ्ते में बना देगा। लाइक आपका आइडिया भी सुनने में ऐसा लगता है कि यार कोई क्यों ही मतलब अपना टाइम सेल करेगा आपकी वेबसाइट पे, क्यों ना मैं पेपैल से पेमेंट लूं, जूम का लिंक दूं, क्यों मैं ऐसे चक्कर में पड़ूं। बट व्हेन यू थिंक अबाउट द डायनामिक्स ऑफ इट, एक स्टेप जो होता है आपको लेना पड़ता है, यू हैव टू हायर एन असिस्टेंट, और वो जो राउट आपने एलिमिनेट किया हुआ है विच इज फैंटास्टिक। एंड जो हम सोचते हैं ना इन द टेक इंडस्ट्री, बैंगलोर, सिलिकॉन वैली में हर कोई पता क्या सोचता है कि अगर मैं किसी को आइडिया शेयर कर रहा हूं तो मैं एनडीए लिख देता हूं ताकि कोई आइडिया चोरी ना करे। But I think in this world, idea has minimum value unless you implement it. When you have started to implement it, you can patent it. So can you please share idea से आपने कब फिगर आउट किया कि आपको पैटेंट करना चाहिए so that no one can copy your idea? तो पैटेंट तो टेक्निकली हमने अभी भी नहीं किया हुआ है, एंड आई थिंक अभी भी हमारा आइडिएशन ही है। मतलब देखो, आई थिंक पैटेंट इज समथिंग दैट यू कैन डू विच इज अ वेरी फिजिकल और टेंजिबल काइंड ऑफ अ थिंग, सो दिस इज स्टिल एन आइडिया। But let me give you an example ki what we can patent. So for example, we can patent the way people interact over a query, for instance, जो अपने को डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं एंड उनके ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर, इवन पीपल आर एबल टू रेस्पॉन्ड ऑन व्हाट्सएप बट उनकी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स कभी भी एक्सपोज नहीं होती है। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शनैलिटी दैट वी कैन गो अहेड एंड पेटेंट। बट आइडिया को पेटेंट करवाना, नो वन विल पेटेंट द आइडिया, बिकॉज आइडिया तो लाइक यू राइटली मेंशन, तो आइडिया की बहुत ही मिनिमल वैल्यू होती है। तो और जैसे कैब इंडस्ट्री है, राइट? सो कैब इंडस्ट्री में कि मैं एक ऐप बनाऊंगा जिसके थ्रू कैब बुक कर सकते हैं, ये एक आइडिया है। अब इस पे अपन 10 कंपनीज बना सकते हैं, और बनी भी हैं। इससे यूएस में भी उबर और लिफ्ट चल ही रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज आई थी। तो उन्होंने जो पेटेंट कराया है समथिंग दैट इज हाउ दे मैच अ ड्राइवर विद अ राइडर, right? So that algorithm is something that we can patent. So we are not at that point of stage right now कि हम कुछ patent करवाएं अभी, and gradually we are building things, and someday when we think यार ये एक बहुत ही amazing चीज हमने बना दी है, which is something that is like a true moat in our product in some manner, तो उसको definitely we'll submit it for patent. I'll add to your point. तो I've opened up a service of ki on my TopMate ki if someone wants to have some sort of discussion around ki startup कैसे build करना है, तो and I see lots of people they ask one question कि मैं आइडिया किसी के साथ मैं शेयर तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इट्स कोई कॉपी कर लेगा। देन आई टेल देम कि यार इवन इफ कभी ना कभी तो मार्केट में जाना पड़ेगा ना, एंड हाउ मच ऑफ अ हेड स्टार्ट विल यू हैव कि आपने लॉन्च किया मार्केट में एंड लेट्स से कि आपने को 2 महीने लगे वो बिल्ड करने में। दूसरी कंपनीज दे हैव अ टीम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स, दे कैन डेवलप दैट थिंग। अगर सिर्फ आइडिया ही होता वो तो 2 दिन में बना के इसको मतलब खत्म कर सकते हैं। सो यू विल नॉट गेट दैट सॉर्ट ऑफ अ हेड स्टार्ट, so there's no point. In fact, you should be sharing your idea with lots and lots of people to get that feedback, and that's what I mean, I really don't get it why people don't discuss it outrightly. मतलब लोग क्यों stealth mode में LinkedIn पे डाल के रखते हैं। हम लोगों ने वही गलतियां करी थी। इनफैक्ट when we started बैठे तो हम लोगों ने stealth mode में लगा के किसी को नहीं बता दी क्या आइडिया है। जी बट या it is I don't think so कि anyone should do it. They should talk about it outrightly, और जितने ज्यादा लोगों से डिस्कशन करना चाहिए उतने ज्यादा लोगों से डिस्कशन करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। जितना फीडबैक मिलता है ना हमें अपने आइडिया से, उतना हम स्ट्रांग हो जाते हैं अपने ओपिनियन में। Exactly. और मैं बताता हूँ कि हम आजकल एक हाई स्कूल, मिडिल स्कूल
छोटे से छोटा बच्चा ऐप बनाने लग गया है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे डालने लग गया है और डाउनलोड्स आने लग गए हैं। अगर वो एक बच्चा आजकल हमारे जैसा बन जाएगा, जब हम बड़े हो जाते हैं, एक चीज करने से पहले ना बहुत बार सोचते हैं, वो बच्चे नहीं सोचते हैं और वो हमसे आगे इस कारण निकल पा रहे हैं बिकॉज वो एक आइडिया को आगे फॉरवर्ड जल्दी लेके जा पा रहे हैं एज कम्पेयर टू हम, कि हम सोचते हैं कि यार क्या कोई कॉपी कर लेगा तो क्या होगा। आइडिया की वैल्यू है ही नहीं जब तक वो इम्प्लीमेंट हो। एंड आजकल भी एक प्रोडक्ट के 100 कॉपीज बिकते हैं बिकॉज आइडिया इज नथिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, एंड इम्प्लीमेंटेशन से ही आप एक फंडिंग राउंड तक पहुंच सकते हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक वही लोगों का फियर रहता है कि कॉपी कर लेंगे, बट यही सबका ऑब्वियसली जब भी स्टार्ट करते हैं सबका सेम फियर रहता है, क्योंकि आप खुद ही एक्सपीरियंस करते हो, आई थिंक खुद ही लर्न करते हो, तो वो हमेशा होता है सही। जी। अगर कॉपी का डर होता तो आज तक कभी शार्क टैंक ना बनता। तो एंड दोज हु डोंट नो, मुझे खुद इतने ज्यादा रिक्वेस्ट आते थे फॉर स्टडी अब्रॉड क्वेश्चंस, एंड मैं कभी सोचता था कि मुझे एक वेबिनार करना चाहिए, पर वो क्वेश्चंस इतने पर्सनल होते हैं उनके एसेस के बारे में, आई कुडंट डू इट। तो देयर हैज टू बी अ डिस्कनेक्ट बिटवीन पर्सनल क्वेश्चंस एंड पब्लिक क्वेश्चंस जो लोग वेबिनार में कर सकते हैं, एंड वो दोनों के सॉल्यूशंस टॉपमेट ने मुझे इंप्लीमेंट करने में हेल्प किया। So those who want to do a monthly webinar with me can do it in terms of study abroad, जो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो साथ में ग्रुप में क्वेश्चंस मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, एंड दोज हु वांट टू गेट देयर स्टडी अब्रॉड एप्लीकेशन रिव्यूड, एसेज रिव्यूड, वो एक पर्सनल कॉल में कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्टडी अब्रॉड, इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन द वर्ल्ड ऑफ टेक इंडस्ट्री सॉल्व कर पा रहा हूं मैं, एंड एनीवन हु वांट्स टू इट with zero followers and want to get into this industry can do it thanks to TopMate. Absolutely. Thanks a lot, Harnoor, for appreciating us. I think जो आपने सही बोला कि बहुत सारे लोगों के मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, समथिंग आर पब्लिकली अवेलेबल, बट मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज अ पर्सनलाइज्ड थिंग दैट यू आर लुकिंग टू गेट आंसर फॉर, क्योंकि सबकी स्टोरी अपनी होती है, सबके चैलेंजेस अपने होते हैं, एंड दे वांट टू काइंड ऑफ रिलेट टू दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड आस्क द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड दैट्स वेयर दिस पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन कम्स हैंडी, क्योंकि वो ही आपको बेस्ट एडवाइस दे पाते हैं ऑब्वियसली, एंड दैट इज द वे दे आर डिजाइंड। इसलिए वो इस तरह से नोन है कि यार आपको बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक स्पेसिफिक गाइडेंस मिलेगी। सो थैंक यू दिनेश एंड अंकित, आपने स्टार्टअप वर्ल्ड में स्पेशली इन बैंगलोर आपने छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक सारे क्लैरिफाई कर दिए, एंड दैट मेक्स इट इजियर। आई होप किसी को अगर बाद में इंडिया में स्टार्टअप build करना है, they will not think about implementing that idea, and they can also make it big just like you have done. Thank you so much for your time. I hope this podcast adds value to all the people watching this. Thank you. Thanks a lot, Arnob. बहुत अच्छा लगा. Thank you so much.